नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। यू आर ए को क्रिएटर विद इन द डिवाइन। लेसन सेकंड, excerpt from the book Soul Lesson and Soul Purposes Channel Material. You are a co-creator with the universe, and everything in your life is a direct reflection of how you are presently using your generative power. As a divine being, you possess the ability to create on the earth plane, but to successfully achieve what you truly desire, you must work within the framework of what is known as divine law. There are immutable principles ordained by God that governs how the physical worlds come into existence. If you act in accordance with these holy precepts, you will attain anything you wish. Each new lifetime carries on exactly where your previous life one left off. Not only do you choose the setting of your present incarnation, but you also carry over attributes from your past lives as well. You move steadily along the learning curve, incrementally working towards fully assuming, expressing and mastering your divine spirit on the physical plane. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। You are a co-creator with the divine. Lesson second, excerpts from the book Soul Lesson and Soul Purposes Channel Material. You are a co-creator with the universe, and everything in your life as a direct reflection of how you are presently using your generative power. As a divine being, you possess the ability to create on the earth plane, but to successfully achieve what you truly desire, you must work within the framework of what is known as divine law. There are immutable principles ordained by God that governs how the physical world comes into existence. If you act in accordance with these holy precepts, you will attain anything you wish. Each new lifetime carry on exactly where your previous one left off. Not only do you choose the setting of your present incarnation, but you also carry over attributes from your past lives as well. You move steadily along the learning curve, incrementally working towards fully assuming, expressing and mastering your divine spirit on the physical plane. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप परमात्मा के सह निर्माता हैं। पाठ द्वितीय, पुस्तक आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए चैनल सामग्री। आप ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं और आपके जीवन में सब कुछ इस बात का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है कि आप वर्तमान में अपनी उत्पादक शक्ति का उपयोग कैसे कर रहे हैं। एक दिव्य प्रणाली के रूप में आपके पास पृथ्वी पर सृजन करने की क्षमता है, लेकिन जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको दिव्य कानून के ढांचे के भीतर कार्य करना होगा। भगवान द्वारा निर्धारित अपरिवर्तनीय सिद्धांत है जो नियंत्रित करते हैं कि भौतिक दुनिया कैसे अस्तित्व में आती है। यदि आप इन पवित्र उपदेशों के अनुसार कार्य करते हैं तो आप जो चाहे प्राप्त करेंगे। प्रत्येक नया जीवन काल ठीक उसी स्थान पर चलता है जहां आपका पिछला जीवन समाप्त हुआ था। आप न केवल अपने वर्तमान अवतार की सेटिंग चुनते हैं, बल्कि आप पिछले जन्मों की विशेषताओं को भी साथ लेकर चलते हैं। आप भौतिक स्तर पर अपनी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से ग्रहण करने, व्यक्त करने और उसमें महारत हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य करते हुए सीखने की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के हम पहले कई अंशों हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। फिर पत्री समय इसमें एक नए अध्याय के साथ बता रहे हैं। आप परमात्मा के सह निर्माता हैं। वह परमात्मा के साथ एक सह निर्माता के रूप में कार्य करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं। आप ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं और आपके जीवन में जो कुछ इस बात का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है कि आप वर्तमान में जो आपके अंदर उत्पादक शक्ति है उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। हम कैसे उस शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक दिव्य प्रणाली के रूप में हम पृथ्वी पर सृजन करने की हमारे पास क्षमता है, लेकिन वास्तव में हम जो चाहते हैं उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो भी उस ढांचे के भीतर, जो दिव्य कानून के ढांचे के भीतर कार्य करना होगा, उस कानून के बाहर जाकर हम कार्य नहीं कर सकेंगे।
भगवान द्वारा निर्धारित अपरिवर्तनीय सिद्धांत जो है, जो नियंत्रित करते हैं कि भौतिक दुनिया कैसे अस्तित्व में आई है। यदि आप इस पवित्र उद्देश्यों के अनुसार कार्य करते हैं तो आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इन चीजों को हम जो गहराई से तभी हमें समझ आएगी जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे, तब जाके हमें आत्मा पाठ और आत्मा के उद्देश्य के जो ये महत्वपूर्ण जो अंश है, हम तभी समझ पाएंगे। तो हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और संजय संगति करना चाहिए। प्रत्येक नया जीवन काल उसी स्थान पर चलता है जहां आप पिछला जीवन समाप्त हुआ था। जैसे हमारी आत्मा जो पिछले जो जन्म ले चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है, उसके बाद नया जब जन्म लेते हैं, जो पिछले जन्म में हमने जिस कार्य को जहां से छोड़ा था वहां से फिर हम उस कार्य को आगे करना शुरू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए हम इस पृथ्वी तल पर आते हैं। आप न केवल अपने वर्तमान अवतार की सेटिंग चुनते हैं, बल्कि आप पिछले जन्मों की विशेषताओं को भी साथ लेकर आते हैं। जैसे हम पिछले जन्म में जो हमारी विशेषता होती है, उन विशेषताओं को साथ भी इस जन्म में हम लेके आते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आप भौतिक स्तर पर अपनी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से ग्रहण करने, अवगत करने और उसमें महारत हासिल करने में दिशा में लगातार काम करते हुए सीखने की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम इस पृथ्वी तल में भौतिक स्तर पर जो भी अनुभव करते हैं, सीखने की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं, व्यक्त करने में, ग्रहण करने में, उस सीखने की दिशा में आगे लगातार हमें बढ़ते हैं और आत्मा की प्रगति पर हम अपना अनुभव ग्रहण करते रहते हैं। दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप ध्यान से सुने और आप पत्री सर के बताए हुए आनापानसति ध्यान जो पत्री सर ने बताया है, उसे नियमित रूप से प्रतिदिन करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। इसके माध्यम से इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण अंश है आपको जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदारों जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।